we start with this chapter, functions. Now, first, let's understand what is a function. So, to make you understand exactly what is a function, I'll start with a diagram. Okay, let's say there is this machine from which you input some raw material or certain things, and what you get over here is some output. So function is basically a mathematical relationship between this input and output. I'll give you an example to understand this. So I'll write over here, say for example, this is a machine. Let's say this machine is a juicer. Okay. Now, over here, input and output. So what do we input? Say for example, this machine is a juicer. So I'll write over here, juicer. Have you all seen a juicer? ओके गन्ने का तो जूसर देखा है ना, शेरडीन और रस. ओके फिर ऐसे जूसर आते जहाँ पे यू पुट द ऑरेंज ऑन दैट हाफ ऑफ इट एंड ऑटोमेटिकली यू विल गेट ऑरेंज जूस. और ऐसे भी मशीन है जहाँ पे कोई ऐसे गोल 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 घुमा के फ्रूट्स को स्क्वीज करके जूस एक्सट्रैक्ट करता है. सो लेट्स से दिस मशीन इज अ जूसर एंड you input apples. What juice you will get? Can I say you will get apple juice? Barabar છે? Any doubt? Okay. You input orange. What do you get? चलो बोलो भाई, शांत क्यों हो गए? ऑरेंज जूस. Yes, orange juice. हाँ, थोड़ा पार्टिसिपेट करो. साइलेंट मूवी मत बन जाओ. Okay. Then you input pineapple. You get pineapple juice. गुआवा जूस है बोले. Yeah, guava. Okay. Mosambi. So Mosambi juice. Now, can I say over here there is input and there is output, and each input is related with a output? Can you see this? Each input is related with some output. You agree? Any doubt in this? नो सर. Okay. Now let's take another example over here. Okay, ध्यान देना सब. We take, I'll change the color. Say input and output. Let's take input as apple, beetroot, and carrot, and watermelon. Now, I want to combine all these four into my juicer and make a juice for summers. Okay? And the name of this juice is summer juice. पॉसिबल है ऐसा? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? Yes, sir. तुम्हें Yes, sir. राहुल गांधी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि हम आलू डालेंगे और सोना निकलेगा. याद है तुम्हें? ऐसा एक एग्जाम्पल दिया था. तो बेसिकली यही कंसेप्ट है
You input, you get output. You input, say, is a machine which manufactures chips, okay, potato chips, banana chips. So you put apple, you get apple chips. You put banana, you get banana chips. तो वैसे बहुत सारे like processes है where there is a input and there is a output. Now over here, we want to understand the relationship between input and output, and the relationship should be such that for every input, all of you please pay attention, for every input there should be a unique आउटपुट. यानी कुछ भी इनपुट हो रहा है तो उसका एक यूनिट आउटपुट होना चाहिए. क्या ऐसा हो सकता है कि इनपुट किया और आउटपुट हुआ, उसमें इनपुट किया एप्पल और आउटपुट हमें मिला एप्पल जूस भी एंड कैरेट जूस भी? ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एक ही इनपुट के दो अलग अलग आउटपुट हो? ऐसा पॉसिबल है? तो अगर ऐसा होता है तो इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे. समझ में आया? समझ में आया? इट मीन्स फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ इनपुट, लेट्स से इट इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी. फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए there has to be a unique element in B. If there is A but not B, or there is A but multiple B, then it is not a function. तो function यानी वो रिश्ता है between two variable, one is input and other is output, कि उनका relationship क्या है. Say for example, I input 1 kg apple. I input 1 kg apple, I get 500 ml juice. तो उनका एक रिलेशनशिप बना कि नहीं? सो इफ आई इनपुट 5 kg एप्पल, मुझे कितना ml जूस मिलेगा? ओके, आई राइट ओवर हियर 1 kg एप्पल, I get 500 ml of juice. So if I input 5 kg apple, कितना जूस मिलेगा मुझे? 2500 ml. तो कैन आई से इन दोनों के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है? समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? सो वही मैथमेटिकल रिलेशनशिप को हम कहते हैं फंक्शन. पता चला व्हाट इज फंक्शन? ध्यान दो फिर से एक बार. फंक्शन वही है जहां पे एक इनपुट है तो उसका एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए. बट यू विल से सर यहाँ पे बहुत सारे इनपुट है तो उसका तो एक ही आउटपुट है. हाँ, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि एप्पल है तो उसका एक यूनिक आउटपुट है, समर जूस के अंदर आता है. बीटरूट है तो यूनिक आउटपुट है. कैरेट है तो एक यूनिक आउटपुट है. वाटरमेलन है, एक यूनिक आउटपुट है. पर ऐसा नहीं हो सकता है कि एप्पल है और उसके दो आउटपुट है. दैट इज नॉट पॉसिबल. then that mathematical formula is not a function. Is this clear? You got an idea about what is function? Please record this. ये सब examples लिख लो. One more example is तुम्हें पता है आटा चक्की? Do you know घर घंटी? घर में घंटी वागे नहीं, घर घंटी यानी आटा चक्की. So if you put wheat, you get wheat flour. If you put rice, you get rice flour. If you put grams, chana, so you get gram flour. Understood this? If you put bajra, you get bajra flour. समझ में आया सबको? तो वो जो उनका रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं फंक्शन. अंडरस्टूड दिस? तो अगर कुछ इनपुट है तो उसका एक यूनिक आउटपुट होना ही चाहिए. गॉट इट ऑल ऑफ यू? कंसेप्ट पता चला सबको? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. लिख लो फटाफट. ओके, नाउ you can see over here in the textbook this diagram is given.
So figure 1, figure 2, figure 3, figure 4. So now you can see over here that for set A and set B, so set A you have to consider as input and set B you have to consider as output. So over here for input 1, you get output 5. For input 2, you get output 6. So input 3, you get 7. Input 4, you get 8. So for every element of A, there is a unique element of B. Hence, figure 1 is a function. Now, let's take figure 2. यानी 10 से 15 हो गया, ये 10 है, ओके, उससे 15 हो गया, तो वी से मोर, अग्री, 10 रुपीज था 15 रुपीज हो गया, तो उनका रिलेशन है कि प्राइस इंक्रीज मोर. 5 है, उससे 2 हो गया, तो देन इट इज लेस. तो अगेन यू कैन से कि दिस इज अ फंक्शन बिकॉज हर एक एलिमेंट ऑफ ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इन सेट बी. लेट्स सी फिगर 3 जो हमने एग्जांपल देखा था, रिफ्रेशिंग समर जूस. सो ए बी सी डी 4 इनपुट है और उसका एक आउटपुट है, दैट इज पी. And over here, once again, figure 4 is very similar to figure 2 के -2 से 2 हो गया तो increase of 4, and -1 से +1 हो गया तो increase of 1. So all these are example of a function. Now ये 1 से 5 कैसे हुआ, 2 से 6 कैसे हुआ, 3 से 7 कैसे हुआ, 4 से 8 कैसे हुआ, उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसको हम कहते हैं फंक्शन. सो नाउ लेट्स गो टू द डेफिनेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न द डेफिनेशन, सो प्लीज पे अटेंशन. इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट and each element of set A is related with, ध्यान दो, if A and B are non-empty यानी खाली नहीं होने चाहिए क्योंकि कोई इनपुट ही नहीं है तो कोई आउटपुट ही नहीं होगा, and each element of set A is related with one and only, underline करो, set A is related with one and only one element of set B. कैसे रिलेशन हुआ, इनका रिश्ता कैसे बना, ये दोनों दोस्त कैसे बने, by some rule, by some relation or correspondence, then it is called a function from set A to set B, and functions are denoted by small in italics F, G, H, K, etc. Set A to set B is denoted like this. So please write this and mark the important points. You need to learn this definition and even understand it. Understanding क्या है कि हर एक एलिमेंट ऑफ ए है, उसका बी के साथ, कोई बी के सेट में कोई ना कोई के साथ, किसी ना किसी के साथ रिश्ता होना चाहिए. समझ में आ गया? ये रिश्तों का खेल है मेरे बच्चों, रिश्तों का खेल. गॉट इट? ओके, पता चला सबको? ओके, सेट ए में कोई है और उसका सेट बी में कोई दोस्त नहीं है, तो क्या हम उसको फंक्शन बोलेंगे? No. वेरी गुड. No, सेट sir. ए में है कोई और उसका सेट बी में 2 रिलेशन है, तो चलेगा ऐसा? नहीं 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 नहीं, ऐसा अलाउड ही नहीं है. अंडरस्टूड दिस? पर सेट ए है, सेट बी है, उन दोनों का एक कॉमन दोस्त है सेट बी में. सेक्शन ए में 2 लोग हैं, उन दोनों का एक बेस्ट फ्रेंड सेक्शन बी में है, तो चलेगा? समझ में आया सबको? समझ में आया? तो सेट ए को यू कैन टेक एज योर क्लास में सेक्शन ए एंड सेट बी एज सेक्शन बी. गॉट इट? अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सबके माइंड में?
हेलो हेलो। Yes, sir. ओके बढ़िया। हाँ तो ऐसे उदास मत बैठे रहो, कोई भी ऐसे मुस्कुरा, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कोई बेसड़े में बैठा हूँ, ऐसे 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 शक्ल बना के बैठते कि आज लगता है ऑनलाइन में एजुकेशन मर गया, चलो शोक मनाते हैं। ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ, पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा अंदर फील लाओ पढ़ाई का। हाँ, ओके चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे होंगे कोई लोग तो दुखी हो गए। हाँ ऐसा पॉसिबल है कि सर हम तो रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे थे तो दुखी हो गए सर कि मेरा नंबर कब आएगा। हाँ, आएगा आएगा, डोंट वरी। अभी तुम्हारी पढ़ाई से रिश्ता बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे रिश्ते बन जाएंगे, चिंता मत करो। ओके चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। टेक आउट योर नोटबुक्स, वी विल डू सम इलस्ट्रेशन एंड वी विल चेक। ओके, टेक्स्ट बुक हो सामने तो कोई बात नहीं है, बट आंसर्स मत देखना, हम खुद वर्क करके देखेंगे कि इनमें रिश्ता है या नहीं है। ऐसा हो तो टेक्स्ट बुक को बंद कर दो ताकि तुम फोकस कर सको कंसेप्ट में। नाउ we will do illustration 1. We have to verify. Okay, you can see that page number 266 momentarily, and then you can close the book. Verify whether relation between the elements of the sets given below are functions or not. तो हमें verify करना है कि ये जो दिया है नीचे एलिमेंट्स वो फंक्शंस है कि नहीं, वो जो फॉर्मूला है क्या वो फंक्शन वैलिड फंक्शन है कि नहीं। सो लेट्स टेक द फर्स्ट वन, illustration 1. We take the first one. We write the question. A is equal to 1, 2, 3, 4. B is equal to 3, 5, 7, 9. And the relation, इन दोनों का relationship क्या है? F of x is equal to 2x plus 1. Where x जो है ये वाला x, प्लीज ध्यान दो, ये वाला जो x है it belongs to a, यानी यहाँ पे जब हम a इनपुट करेंगे तो हमें एक आउटपुट मिलेगा जो b में होना चाहिए। सो x कैन बी व्हाट, x कैन बी इक्वल टू आइदर 1 और 2 और 3 और 4, लिख दो ये। And then we start doing it. F of 1 is equal to 2 into 1 plus 1, which is 3. F of 2 is equal to 2 into 2 plus 1, which is equal to 5. F of 3, which is equal to 2 into 3 plus 1, which is equal to 7. And F of 4, which is equal to 2 into 4 plus 1, which is equal to 8 and 1, 9. So now we can see that for 1 there is 3, for 2 there is 5, for 3 there is 7, and 4 there is 9. So can I say that over here for every element of A, for each element of A, there is one and only, ये वन एंड ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन ए में जो स्टूडेंट है वो सेक्शन बी में कोई एक स्टूडेंट से दोस्ती करेगा, एक से ज्यादा अलाउड है नहीं। पता चला, पता चला। पर बी सेक्शन वाले स्टूडेंट है, ए वाले 3 स्टूडेंट भी बी वाले एक स्टूडेंट के साथ दोस्ती कर सकते हैं। समझ में आया? तो मल्टीपल इनपुट है, एक आउटपुट है, चलेगा।
एक इनपुट है एक आउटपुट है चलेगा, पर एक इनपुट के दो आउटपुट चलेगा नहीं। पता चला? तो क्या ये फंक्शन वैलिड है या नहीं है? Yes, sir. It is valid. That is one and only one element in B. Hence, f of x is equal to 2x plus 1 is a function. Answer. Now, illustration 2. P is equal to minus 1 by 2, comma 0, comma 1, and S is equal to 10. यानी P में 3 बालक है, बट S में सिर्फ एक ही बालक है। ओके, नाउ इनका रिश्ता क्या है? द रूल इज K in the bracket X is equal to 10 and X belongs to P. यानी क्या? पहले हम लिख देते what can be X. So X can be minus 1 by 2, 0 and 1. रूल क्या है? K of X, function K of X is equal to 10. यानी क्या? ध्यान दो कि K of minus 1 by 2 will also be equal to 10. K of 0, which will also be equal to 10, and K of 1 will also be equal to 10. So if I draw a diagram, we have set P. इसके अंदर है minus 1 by 2, फिर 0 और 1. उसके साथ we have set S. उसमें हमारे पास क्या है? उसके हमारे पास है only 10. So minus half also connected with 10, 0 also connected with 10, and 1 also connected with 10. तो ये allowed है? क्या हम इसको function बोल सकते हैं? Is this allowed? Yes. Because हर एक element of P has one unique output 10. So let's write for every element of X belongs to P, there exists an element 10. Hence, K of X is equal to 10 is a function. So here we are doing sums to identify कि ये functions है या नहीं है. Third one. A is equal to 2, 5, 6, and B is equal to 1, 3 by 2, 9 by 5, 11 by 7, 13 by 6. And the rule is y is equal to 2x minus 1 upon x plus 1, where x belongs to A. Where x belongs to A. Now, let's check it out. Y is this formula, and x is equal to 2 or 5 or 6. So first let's write y is equal to 2x minus 1 upon x plus 1. So for
x is equal to 2, y is equal to 2 into 2 minus 1 upon 2 plus 1, which is equal to 4 minus 1 is 3, 2 plus 1 is 3, 3 upon 3 is equal to 1. तो क्या रिश्ता बना? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है. चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या रिश्ते हैं. x is equal to 5, so y is equal to 2 in the bracket 5 minus 1 upon 5 plus 1, which is equal to 2 5s are 10 minus 1 is 9 by 6, which is 3 by 2. Let's check ये रिश्ता बना कि नहीं. बनाएंगे रिश्ते. 5 उसके साथ है 3 by 2. चलो बन गया रिश्ता. नेक्स्ट, x is equal to 6, so y is equal to 2 into 6 minus 1 upon 6 plus 1. So 6 2s are 12 minus 1 is 11 and 6 plus 1 is 7, so which is 11 by 7. So let's check out कि इनका रिश्ता बन रहा है कि नहीं. So यहाँ पे 6 है और यहाँ पे है 11 by 7. तो क्या ये फंक्शन वैलिड है या नहीं वैलिड है? क्या ये फंक्शन है या नहीं है? Valid is वैलिड है. बट व्हाट अबाउट 9 by 5 एंड 13 by 6? उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है. ध्यान देना प्लीज बच्चों. यानी अगर एक इनपुट है तो उसका एक आउटपुट होना चाहिए. अब आउटपुट में बहुत सारे हैं तो उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है. सेक्शन ए में 5 स्टूडेंट है, सेक्शन बी में 20 स्टूडेंट है, पर 5 स्टूडेंट के 5 ही बेस्ट फ्रेंड है, तो बाकी सबसे कोई फर्क पड़ता नहीं है. समझ में आया? यानी ए के जितने भी एलिमेंट है उसका एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी में होना चाहिए. बी में चाहे कितने भी भरे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं. गॉट इट ऑल ऑफ यू? स्माइल मिसिंग है आज के यूथ के चेहरे पे. स्माइल मिसिंग है. सिर्फ सर ही पढ़ाते हैं वही खुश होते ऐसा लग रहा है. सब दुखी आत्मा है. दफन कर दिया पढ़ाई को, आज उसका शोक मनाएंगे. बराबर है. चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. फोर्थ वन, वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ b is equal to -1 0 1 3, c is equal to -5 -3 -1 1 और 3. रूल क्या है इनका? चलो रूल लिख लेते हैं हम. इनका रूल है h of x is equal to 2x plus 3 and x belongs to b. तो देख लेते हैं x क्या ले सकते हैं हम. taking x is equal to -1 0 1 3. So let's check out. h of x is equal to 2x plus 3. तो पहले h of -1 is equal to 2 into -1 plus 3, which is equal to -2 plus 3 is 1. h of 0 is equal to 2 into 0 plus 3, which is equal to 3. 2 zeros are 0 plus 3 is 3. Then h of 1 is equal to 2 into 1 plus 3, which is equal to 2 ones are 2 plus 3, which is 5. And h of 3 is equal to 2 into 3 plus 3, which is equal to 3 2s are 6 plus 3 is 9. Now let's check out कि इसमें क्या रिश्ते बने, क्या बिगड़े. Now ये -1 को
उसका एक यूनिक साथी 1 मिल गया। ओके, 0 को उसका एक यूनिक साथी 3 भी मिल गया। सो ये 0, ये 3, बट व्हाट हैपन्स टू 1? ये जो 1 है उसका साथी है 5, जो यहाँ पे है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है, तो ये 5 हमें नहीं मिला। फिर 3, ये 3 जिसको मैंने पिंक कर दिया, पर उसको भी कोई साथी 9 मिला नहीं। तो यहाँ पे 1, 1 और 3 के अरमान थे कि कोई ना कोई मिल जाए, पर उनको जिसको मिलना है वो सेट सी में है ही नहीं। तो क्या ये पॉसिबल है? नो सर। नहीं, रिश्ता बनना चाहिए, नहीं बनेगा नहीं चलेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे we can say that h of x which is equal to 2x plus 3 is not a function। वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दो, मैथमेटिकल इक्वेशन है पर फंक्शन नहीं है। गॉट इट? सो लेट्स राइट। So we write for h of 1 and h of 3 there is, in fact my dear student, h of 1 करने के बाद ही you can say कि वो फंक्शन नहीं है, तुम्हें 3 तक जाने की जरूरत ही नहीं है। So for h of 1 and h of 3 there is no corresponding element in set C. Hence h of x is equal to 2x plus 3 is not a function. It may be a mathematical equation, but it is not a function.